Good morning, class. How are you all, Sanskarians? So, once again, welcome to your SST class. So far, we have discussed our geography. Today, we are going to discuss about the fourth chapter of our geography, that is the maps. So, in the previous of your classes, in the fifth class, you have also read out about the maps. Means what are the maps, how we are making the maps, what are the most important maps. So in this chapter we are going to see that how we are going to study the maps, what are the things that are useful for making of the maps, means what are the factors which are determining to making of maps. So look out, what is generally we are coming, what we are saying that what are the maps. Generally to whom we are saying to as a map. Map means it is a representation of earth on a piece of paper. कि जो पूरी अर्थ है अपनी उसको क्या करते हैं अपन रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, पीस ऑफ पेपर पे. दैट इज नोन एज मैप्स. गॉट इट बेटा? व्हाट आर मैप्स? It is a representation of the earth's surface on a piece of paper through its symbols, directions and distances. Okay, that is known as map. Got it, beta? So generally we are looking out that there are so many places when we are moving for that journey. Then we are looking that it is very difficult to understand that place. So what things are there which are more helpful to understand that place? So it is only the one thing that will help us to understand, that is the map. Got it? So what are maps? Again I am telling what are maps. Maps means it is a representation of earth surface, total earth surface on a piece of paper. ठीक है, अपन क्या करते हैं पूरी अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पे, एक पीस ऑफ पेपर पे. ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट वी विल लुक आउट इन दिस चैप्टर, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ओवर दैट थिंग्स. सो सपोज दैट इफ यू आर विजिटिंग टू ए अनदर कंट्री, ठीक है, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो बाहर, ठीक है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट country's language also, that country's place also. We are very not well about that country's stay. So what will help us to know about that country's places? कि अपने को ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो अपने को उस कंट्री की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को अपने को अंडरस्टैंड करने में अपने को हेल्पफुल रहेंगी. ठीक है, तो उस टाइम पे कौन चीज़ें अपने को हेल्पफुल रहती हैं? जितना भी अपना मैप्स होते हैं ये सारे अपने को हेल्पफुल रहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं पूरा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उस पूरी कंट्री का. ठीक है, उस एक पर्टिकुलर प्लेस का या फिर पूरी अपनी अर्थ का, जो अपने को क्या करते हैं, दीज आर हेल्पिंग अस टू नो अबाउट दैट प्लेस. गॉट इट? लाइक मेरे को किसी हॉस्पिटल में जाना है तो मेरे को वहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट मिल जाएगा मैप में कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, पेट्रोल पंप कहाँ पे, वेयर आर द रिवर्स, वेयर आर द मॉन्यूमेंट्स, चर्चेज, ठीक है, temples are there. So all those things have been covered up in that symbolic representation. Got it, beta? So again I am telling what is map. Map is a representation of our earth surface on a piece of paper. That is map. So normally for our understanding of our nature, we have divided maps into three different categories. First is physical maps, second is political maps, and third is thematic maps. Again I am telling, first is physical maps, second is political maps, and third one is thematic maps. So what are the physical maps? Means what to whom we are calling as a physical maps? Means all those maps which are covering our physical features of that particular place, they are known as physical maps. Entire Earth's all the physical features have been totally covered up in that maps. Those maps are known as physical maps, such as plains, plateaus, rivers, oceans, etc. Here, so these are what? These are the physical features. So all those symbolic representation of all these physical features have been termed as the physical maps. Got it, beta? Second is political map. Political maps means all those maps which are showing the country's boundary, which are showing the states boundaries, which are showing the cities, towns, villages, they all are considered as the political maps.
मीन्स जितने भी अपनी स्टेट की बाउंड्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज की बाउंड्रीज हैं, जो भी एरियाज है, जो भी विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज हैं, उन सब की बाउंड्रीज को शो करने के लिए जो भी मैप्स अपन यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, दैट मैप्स आर नोन एज पॉलिटिकल मैप्स. Generally we can say that all the maps which are used just to show the boundaries or the political features of that particular place, of our country, of our continent, of our world, that maps are known as political maps. Got it? In this we will see that all the cities, towns, villages, countries boundary, international boundaries, though etc., they have been considered as the political maps. Third map is what are the thematic maps. Thematic maps means all those maps which includes roads, rainfall, distribution of forestries, distribution of industries, along with that all the important monuments, hospitals, they are known as thematic maps. Got it? All things which remained after the political and physical, they all will lie in this thematic maps. Got it? So these are the three major different types of the maps we are having. Got it? So generally to understand a map, we require the three main important factors, or we can say that we require the three main components, or there are the three main components of the maps are there. What are those? Component of map. First is distance. Second is direction, and third is symbols. So generally to understand a map, generally to make a map, generally to read out a map, we require these three major components of the maps. Without these, there is nothing, no use of the map we can say. We cannot read out, we cannot use that map for our perspective. Okay, beta. So what will happen? What is there? What is the importance of the distance? As we see that there is a, like when we are measuring the distance, it is so much long. So how we can put that distance on a piece of paper? That is a map. That is the use of distance, or that process is known as scale. Means it is a term that is used for measuring the distance. That is the scale. Scale means it is the ratio. It is the ratio of actual distance on the ground to the distance on the piece of paper. Got it, beta? That is scale. Again I am repeating what is scale. Scale means it is a ratio of the actual distance on the ground to the actual distance of the piece of paper. Means ground पे जितनी distance होती है उस distance का ratio किसके साथ में, अपने piece of paper पे. ठीक है. For example, मान लो आपके घर से, ठीक है, from your home, ठीक है, जो अपनी पुलिया है, जो कल्याण सिंह सर्कल है, ठीक है, वो जो अपना कल्याण सिंह सर्कल है वो आपके घर से कितना डिस्टेंस के ऊपर है? 5 किलोमीटर पे. ठीक है. आपको मैं बोल दूं कि बेटा जस्ट ड्रॉ योर डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू कल्याण सिंह सर्कल. सो हाउ यू कैन ड्रॉ? आप ये तो है नहीं 5 किलोमीटर तक का पीस ऑफ पेपर लेके बैठ गए और लाइन टू लाइन चल रहे हो कि लो सर, सुबह आ रहे हो ट्रक के अंदर भर के पूरा का पूरा पे रोल करके प्रिपेयर हो के, सर ये देखो हम तो डिस्टेंस लेके आए 5 किलोमीटर तक. That is not actually possible. So what we are doing, what we are looking out, that we are seeing that it is the total scale. We are using that scale. जैसे आप लोग जो यूज करते हो स्केल मेजरमेंट के लिए, पीस ऑफ पेपर के लिए, so same thing we are also using that scale also. ठीक है. तो क्या होता है बेटा, देखो कि मान लो ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, ठीक है, अपना जो पीस ऑफ पेपर है वो इतना ही है. ठीक है. तो अब इतनी बड़ी डिस्टेंस को, ठीक है, मैं इतने बड़े पीस ऑफ पेपर पे कैसे शो करूंगा? ठीक है. सो आई विल रिड्यूस दैट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू माय विल. ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ उस पूरी डिस्टेंस को मेरी विल के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ उसको रिड्यूस कर लेता हूँ ताकि वो मेरे लिए क्या हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए. तो मान लो मेरे लिए 5 किलोमीटर इतना है. ठीक है.
सो मैंने क्या बोला, आप इतनी सी स्केल अगर पीस ऑफ पेपर पे क्या करते हैं, अपन पीस ऑफ पेपर पे क्या कर सकते हैं, उस लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने कि दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, कि 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर मतलब कि जो 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ पेपर पे वो एक्चुअल डिस्टेंस में कितनी है, 5 किलोमीटर तक है। आ गया बेटा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज स्मॉल स्केल, इसको स्मॉल स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ये बोल दूं कि 500 सेंटीमीटर सॉरी 500 mm इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है भाई। ये 500 mm है, ठीक है, नॉट 500 mm, जस्ट टेक 5 mm, ठीक है, कि 5 mm किसके इक्वल है, 5 किलोमीटर तक के, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस के ऊपर मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर यूज किया है, तो मतलब मेरा 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस स्केल को 5 mm में रिड्यूस कर दिया था, ठीक है, कि भाई मेरे को हर एक चीज को क्या डिटेल्ड फॉर्म में देना है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल बोलते हैं, कि छोटी डिस्टेंस को बहुत बड़ी डिस्टेंस को अपन एज कंपेयर टू बहुत छोटी डिस्टेंस में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये एक ऐसी स्केल है जो अपने को क्या देती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है, लार्ज स्केल होती है अपने। स्मॉल स्केल होगी, ठीक है, लार्ज स्केल होगी। सो दैट इज द रोल ऑफ डिस्टेंस ऑन ए पीस ऑफ पेपर ऑन द मेकिंग ऑफ द मैप्स। नाउ सेकंड पॉइंट इज डायरेक्शन, ठीक है। विदाउट एनी डायरेक्शन वी कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। लाइक इट इज अवर मैप, ठीक है। सो टॉप मोस्ट पोर्शन इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज टू बी नॉर्थ, गॉट इट। डाउन पोर्शन विल बी ऑलवेज कंसीडर्ड एज टू बी साउथ, एंड ऑलवेज राइट हैंड साइड, this right hand side will be considered as east and west hand side will be always considered as w. Got it beta? Understand? So these four directions are major direction. Beside these four directions we are having four more cardinal direction. What are those? That are just lying in between these places. I am telling like this, see, this is north, this is south, this is east, this is west. So how directions are useful to consider. Suppose that I am situating here. So what will be my direction? I cannot determine. Clear? So for that directions we are using four more another directions that are the major cardinal direction. What are those cardinal directions? Northeast, southeast, southeast, southwest and northwest. So these are the four major cardinal directions are there. Got it beta? So these will help to determine a particular place. For example, I am here. I am running from south. I have to go here. So what will be my direction? How I am going? Either I am going from south to east. Here. So I can say that place is just situated to my east. ठीक है, अपन नहीं बोलते भाई आपसे बोलेगा आपसे स्कूल है जो कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, आप ऐसे अकॉर्डिंग खड़े हो जाओगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के, फिर आप उसको क्या बोलोगे मेरे स्कूल किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में है या फिर साउथ डायरेक्शन के अंदर। सो दैट इज यूजफुल टू डिटरमाइन ए पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। सपोज दैट इन योर बुक ऑल्सो मान लो कि मेरा घर यहाँ पे, ठीक है, आपका घर यहाँ पे था, स्कूल यहाँ पे थी, ठीक है, और आपका प्लेग्राउंड यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को क्या बोलना है, मेरे को ये बोल दिया कि मेरे को स्कूल जाना है, ठीक है। फॉर दैट आई हैव टू गो फॉर स्कूल है। सो हाउ आई कैन गो, आई विल रेफरेंस टू माय सेल्फ कि मैं क्या करूँगा, एक जगह खड़ा हो गया। अब मेरी स्कूल किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ मेरे लिए इधर, साउथ मेरे लिए इधर, ईस्ट वेस्ट इधर, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया अपने, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपका घर है, ठीक है, मेरे घर से, तो मैंने क्या बोल दिया, कौन सी डायरेक्शन में आपका घर, मेरे घर से नॉर्थ डायरेक्शन में। आपका जो प्लेग्राउंड है वो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। बड़ा गोटी, दैट इज हाउ वी आर यूजिंग दैट डायरेक्शन।
Third and the last component of map is symbols. Means what are symbols, how they are useful. Look students, symbols are those things which have been adopted truly all around the world. ठीक है, सिंबल से एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हेल्पफुल करता है कि अपन ने किसी एक पर्टिकुलर चीज को अपन ने रिप्रेजेंट किया, दैट इज टोटली गोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, थ्रू आउट वर्ल्ड उसको क्या करते हैं अपन कंसिडर करके भी चलते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबल्स मैंने यूज में लिए हैं वो मेरी कंट्री के लिए अलग हैं, आप लोगों के लिए वो अलग हो जाएंगे, जो फॉरेनर्स होते हैं फिर जो अदर कंट्रीज के होते हैं उनके लिए वो अलग हो जाते हैं. नो बेटा, दैट इज सेम थ्रू आउट. फॉर एग्जांपल हाउ वी कैन से सिंबल्स. ठीक है, जैसे ये सिंबल है, ठीक है, दिस सिंबल इज जस्ट यूज्ड फॉर रेलवे ट्रैक्स. सो इट विल बी यूज्ड टोटली फॉर एंटायर वर्ल्ड, फॉर एंटायर ऑल द कंट्रीज एज ए रेलवे ट्रैक ओनली. ठीक है, हॉस्पिटल्स के लिए अपन ने एस देते हैं. ठीक है, पुलिस स्टेशन के लिए अपन पीएस दे देते हैं. ठीक है, टोल बूथ होते हैं, रोड्स आते हैं उनके लिए अलग साइंस होते हैं. ठीक है, मेल्टेड रोड्स ऐसे होते हैं, अनमेल्टेड रोड्स ऐसे ब्रोकन हो जाते हैं. सो दैट आर द सिंबल्स दैट आर हेल्पफुल टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर प्लेस एरिया. कि अपने को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवर्स है. फॉर एग्जांपल मान लो रिवर्स के लिए भी वो जैसे सिंबल देते हैं. ठीक है, वाटर बॉडीज के लिए, सो दैट यू आर हैविंग इन योर बुक आल्सो, दैट यू मे गेट फ्रॉम योर बुक आल्सो व्हाट आर द सिंबल्स. सो दैट आर द हेल्पफुल टू डिटरमाइन अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेस. कि अपन क्या कर सकते हैं, उसे एक पर्टिकुलर प्लेस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं. गॉट इट बेटा? So that is about the maps. Beside that there are the two major points we have left. One is what? Plan. What are those? Plan. Means what is, there is another thing that is plan and sketch. So what are plans? Plans means these are the total length or it is a measurement of the length and breadth of a particular place. कि अपन जैसे किसी भी होम को बनाते हैं तो एक्चुअल के अंदर जितना अपना ग्राउंड पे बनता है टोटली दैट इज ए बेस्ड ऑन द पीस ऑफ पेपर. कि जो पीस ऑफ पेपर पे अपन ने उसको क्या किया है, एग्जीक्यूट किया, वही टोटली अपना क्या होता है ग्राउंड पे आता है. उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लान. अपन लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ, हाइट सारी चीजों को अपन कैलकुलेट करके अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज को प्लान करते हैं. दैट इज प्लान. एंड व्हाट इज स्केच? स्केच मींस दीज आर द आवर मेमोरी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, जैसे अपन क्या बनाते हैं, ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन? स्केच बोलते हैं. ठीक है, ये अपनी एक मेमोरी बेस्ड, तो ये अपनी इमेजिनेशन ही तो है. ठीक है, कि मेरे को ऐसे बनाना होता है, दैट इज स्केच. ठीक है, फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड वांट्स टू कम एट योर होम. ठीक है, कि आपका जो दोस्त है वो क्या करना चाहता है, आपके घर पे आना चाहता है, लेकिन दैट he doesn't know about the path. So what you will tell? You will tell on the call on the phone that you first come out from your home, you come out on the road, then take to a right turn, then move again forward in the north direction. वहाँ पे एक दुकान आएगी, एक शॉप आएगी. ठीक है, उस शॉप से तेरे को राइट हैंड साइड में घूमना है, फिर बिल्कुल एक रोड आएगी, उस रोड पे सीधा चलता हुआ आना. ठीक है, फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे तेरे को एक बहुत बड़ा सा शोरूम दिखेगा, उस शोरूम के बिल्कुल सामने क्या है, मेरी होम की गली, तो वहां पे आ जाना, मैं तेरे को मिल जाऊं. अपन ऐसे तो बता दें किसी को. ठीक है, व्हाट आर दैट? दैट आर टोटली स्केच, आवर मेमोरी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं. सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. दिस इज ओनली देयर इन योर चैप्टर. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच.